Assalamualaikum. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School, Standard 7 and Subject Maths. Friends, today's our topic is exponents and powers, okay, in our bridge course. So, in our earlier classes, we have already learned about what is exponent and what is powers, okay. So, today we will discuss only revise, okay, revision like हम उसको discuss only करेंगे because already we have learnt about it and we have studied about it, okay. So first of all, what is exponents? Exponent means friends जो उसका power होता है. Suppose here I have written that 3 square or 3 raised to 2, okay. So here is this is 2. This is exponent of 3. We call 3 as base and 2 exponent, okay. So 3 multiplied 3, that is 3 square means 3 raised to 2. Now if we have write 3 here 3 times, like 3 multiplied 3, it will be 3 cube means that 3 raised to 3, okay. 3 को हम 3 times अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको क्या हम कैसे लिखेंगे, कैसे राइट डाउन करेंगे, दैट 3 क्यूब. And 3 cube means 3 is in 3 cube 3 is base and this 3 is exponent of this base, okay friends. Now it turns to next level, 3 into 3 into 3 into, okay, how many times here 3 is multiplied by 7 times, okay. So we have to write here 3 raised to 7. 3 की कितनी रेज होगी फ्रेंड्स यहाँ पर 7. So 3 is base in this term and 7 is exponent. Got it friends? Now you are clear about that what is base and what is exponent. Okay, very good. If on the place of 3 if we have write a, अगर if we will take a as 3, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, आपको a जितनी बार लिखने के लिए बोला हो. सपोज if in question there is given then you have to write down a 7 times or a 5 times, then what will you write? You have to write a cube, a raised to 7, a raised to 8, a raised to 5. How many times they will, okay, told us. So a हम जितनी टाइम उसका रेज करेंगे तो वो जो रेज रहता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, दैट इज एक्सपोनेंट. और जो यहाँ पर हम जिसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअल नंबर को, दैट एक्चुअल नंबर इज बेस. तो अब आपको समझ में आया फ्रेंड्स, यहाँ पर जितनी भी टाइम्स a हमने मल्टीप्लाई किया है तो a इज बेस एंड जितनी बार हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ टाइम, ओके, जितनी बार उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो नंबर को जो रेज में होता है, ओके, पावर है जो, उसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड, एक्सपोनेंट. नाउ वंस अगेन वी आर गोइंग टू सी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ओके. you must have to write down in your notebook, okay, these laws of exponents. First one is multiplication rule, okay. In multiplication rule what we have to do, what we will do, a raised to x into a raised to y. अब यहाँ पर multiplication है and both base are same, that's why here we have to write that a raised to x plus y. जो दोनों exponent है उसके between यहाँ पर addition का rule follow होगा. Now division rule, by the division rule a square ax, okay, a raised to x divide a raised to y. यहाँ पर बीच में division and both the base are same but exponent are different, that's why we have to write here that a raised to x minus y. Power of a power rule. Now a raised to x all square y. यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, a raised to x है मीन्स के x, a को ऑलरेडी x पावर है, देन all square मतलब के a को भी और y को भी, दोनों चीज़ को y का भी पावर है. सो दिस कॉल्ड इज पावर ऑफ अ पावर रूल इज इक्वल्स टू a इंटू a raised to x इंटू y. यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसको, a raised to x इंटू y. x और y ये दोनों जो है एक्सपोनेंट्स, उसको हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे. नाउ पावर ऑफ ए प्रोडक्ट रूल. सो हियर बोथ द बेस आर डिफरेंट बट ऑल रेज टू x, ओके. यहाँ पर a एंड b हमको इन ब्रैकेट दिया हुआ है और ब्रैकेट पूरे ब्रैकेट का ऑल रेज टू x, दोनों का पावर क्या है, दोनों का एक्सपोनेंट क्या दिया हुआ है, x. तो हमको a को भी यहाँ पर x पावर देना पड़ेगा और b को भी x पावर देना पड़ेगा. देन हाउ कैन वी राइट इट, इज इक्वल a b होल रेज टू x इज इक्वल टू a रेज टू x इंटू b रेज टू x, ओके. नाउ पावर ऑफ अ फ्रैक्शन रूल. यहाँ पर फ्रैक्शन में देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में थे, अब यहाँ पर डिवीज़न में है.
a by b or a divided by b or a upon b, okay, whole raised to x is equals to a raised to x by b raised to x. गॉट इट फ्रेंड्स, यहाँ पर a को भी x का पावर देना है और अपॉन में b है उसको भी x का हमको पावर देना है. x एज अ एक्सपोनेंट हमको दोनों बेस के साथ लिखना होगा. नाउ ज़ीरो एक्सपोनेंट. आई टोल्ड यू फ्रेंड दैट जिस किसी भी बेस के पास ज़ीरो एक्सपोनेंट हो, ओके, इफ़ एनी बेस है ज़ीरो एक्सपोनेंट देन आंसर विल बी ऑलवेज 1. ओके, a रेज टू 0 इज इक्वल्स टू 1. इवन यहाँ पर 7 रेज टू 0, 8 रेज टू 0, 9 रेज टू 0, जो कुछ भी हो आंसर ऑलवेज विल बी ओके 1. एंड लास्ट थिंग इज नेगेटिव एक्सपोनेंट. ओके, तो हमेशा हमको एक्सपोनेंट ऑलवेज वी हैव टू फाइंड आउट इन पॉजिटिव इंटीजर्स. ओके, वी कांट राइट डाउन इन नेगेटिव एक्सपोनेंट और नेगेटिव इंटीजर्स, तो हमको हमेशा उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा. दैट्स वाई a रेज टू माइनस एक्स. तो ये माइनस एक्स जो है एक्सपोनेंट, नेगेटिव एक्सपोनेंट है, उसको हमको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है. दैट्स वाई a रेज टू माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a रेज टू x. वो किस फॉर्म में हम उसको लेके जाएंगे, डिनोमीटर में लिखेंगे, ठीक है, अपॉन में लेकर जाएंगे. तो वो जो माइनस था, ठीक है, एक्सपोनेंट नेगेटिव फॉर्म में था, वो अब किस में हो जाएगा फ्रेंड्स, वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, सो दीज आर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवीजन रूल, पावर ऑफ अ पावर रूल, पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल, पावर ऑफ अ फ्रैक्शन रूल, ज़ीरो एक्सपोनेंट, एंड लास्ट वन इज नेगेटिव एक्सपोनेंट. Okay, you must have to write down in your notebook and do revise it again and do concentrate. और आपको ये आपकी नोटबुक में लिखकर लर्न करना है. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग. अल्लाह हाफिज़.